Welcome back. We were doing this chapter, Resources and Development. In the last class, I explained you that what is the meaning of resources, यानी anything which is available in our environment, जो हमारे environment में available है, which can be satisfied to which can satisfy our needs, and ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीड्स को satisfy करता है. It should be technically feasible, economically feasible and culturally acceptable. मतलब आप उसको, टेक्नोलॉजी आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप उसको यूज कर रहे हो. एंड इकोनॉमिक मतलब इट शुड नॉट exceed the pocket. यहाँ पर pocket is not of ours. It is about the government. It is about anyone who is using it. And culturally acceptable means there are certain norms. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी produce करो. And then I had also explained you that on the different classifications, ये आपके मतलब की पेपर का क्वेश्चन आता है. And normally this question comes in a one marker way कि classify resources on the basis of origin, on the basis of exhaustibility. और कई बार क्या होता है, इट मे नॉट कम एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इट मे बी लाइक ऐसा आपके पास लिखा हुआ है, फॉरेस्ट एंड मेटल्स abiotic. It may be in the example form. Both the forms are there in the exam. So on the basis of origin, यानी कि उनमें life होना, biotic, bio refers to life, forest, animals, flowers, plants, anything which is having life, and abiotic which doesn't have any life. On the basis of exhaustibility, यानी कि renewable and non-renewable. Water is renewable, tidal energy is renewable, whereas if you talk about many minerals, they are non-renewable. On the basis of ownership, which you possess, a person possess individual, when we are possessing it together, आपके book में भी ये example है, and on the that basis it is community. जैसे हम पार्क हम बोलते हैं, when we talk about park, तो पार्क आपका वो है जो कि मिलकर हम उसको देखते हैं. On the basis of things which are in the boundary, within the boundary, national and 200 किलोमीटर्स के दायरे के अंदर जो आपके वाटर के आसपास में हम जो एरिया होता है, that belongs to nation, and उसके आगे that would be international. Now on the basis of development, potential as a word says which has the capability. Develop, which we have already, हम लोगों ने उसको analyze कर लिया है and started using. Now comes stock and reserve. Stock वो है which is there in the nature, but we don't have the technology know-how. And reserves are which we have yet not started using. Then आपका आता है that due to many reasons for the past few years, the resources have been depleted. आपके पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि why does, मतलब कि what are the reasons of depletion of resources. So these are the points. First, because it has been, यहाँ individuals doesn't mean, do not mean आप, यहाँ पर it means some countries जो है, they got, some countries got the resources, access to resources at the very beginning. हिस्ट्री पढ़िए आप. स्पेनिश रूलर्स जो हैं, दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम स्पेन टू अमेरिका.
वहां पर उन लोगों ने जो है कॉलोनाइज किया, उनको आसानी से वो रिसोर्सेज मिल गए. And there are some countries which could not access these resources. Accumulation, then indiscriminate यानी कि exploitation, global warming, ozone layer depletion. अभी आप लोग देख ही सकते हो कि what is हम लोग जो है without fan we are not able to sit for even a second. This is because of the over exploitation of resources. Then इन सब के लिए इट इज नॉट इजी. अच्छा, एक क्वेश्चन आपके पेपर में लास्ट ईयर आया था, एंड दैट वाज इन द असर्शन एंड रीजन दैट इट इज बिलीव रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सो वी शुड यूज इट इन द सस्टेनेबल मैनर. रीजन था रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड इन द सस्टेनेबल मैनर. तो रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट. इट इज बिलीव बट इट इज नॉट. ये याद रखना आप लोग. नाउ when we talk about the resources, अगर हम कहते हैं कि it has been depleted, it have been depleted, then that means हमारा जो future है that's in danger. और इसके लिए we need, हमें क्या चाहिए? We need sustainable development. Sustainable development is the development which is made for the present without compromising the future. There have been many meetings, many summits to discuss about the depletion of the resources. और एक जो पहला आपका अर्थ समिट था, 1 मार्कर क्वेश्चन, दिस कैन बी 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन. और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन है, दिस इज कॉमन टू दिस चैप्टर एज वेल एज इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर. तो जो पहला आपका जो मतलब कि हुआ था अर्थ समिट इन 1992, इट वाज इन ब्राजील. एंड इसको जो है दिस पर्टिकुलरली इस समिट का मेन एम था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड दे ऑल हैड साइंड इन जो रियो कन्वेंशन था उसमें सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने एजेंडा 21 जो है उसको साइन किया था. अब आपके पेपर में स्पेसिफिकली इन डीएवी नॉर्मली इट कम्स कि व्हाट इज एजेंडा 21. तो एजेंडा 21 वाज अ डिक्लेरेशन जिसमें ये बोला गया था कि बाय द 21st सेंचुरी द कंट्रीज विल हेल्प ईच अदर. It is an agenda to combat damage, poverty, disease, global cooperation. सबको मिलकर they would be taking care. और इसके अंदर they also said the local government should draw its own local agenda. यहाँ local government doesn't mean the local government of India. यहाँ पर it means the countries, यानी कि सारी countries ने एक दूसरे के लिए भी कहा, plus it is also for the individual country. UNCED का फुल फॉर्म भी आया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. दैट इज द अर्थ समिट. इसके लिए जो पहला स्टेप हमें करना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दी, सो आई एम जस्ट गोइंग क्विकली विद दिस. आई विल बी स्टार्टिंग विद द सॉइल वन. रिसोर्स प्लानिंग, यानी प्लानिंग हर चीज के लिए, वेदर यू आर स्टडिंग, whether you are going to मतलब कि go abroad, you are going on a vacation, everything needs planning. और हमारे जो resources हैं specifically in India, we have abundant resources. हमारे पास हर तरीके का resource है. We have the forest, we have the desert, we have the coastal areas, we have the plateau region. But if we are not able to plan it accordingly, then इन रिसोर्सेस का कोई फायदा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई एम मार्किंग, ये पेपर में आए हुए हैं. द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दे आर हैविंग रिच मिनरल्स. एज आई सेड, दे आर द प्लेटू रीजन. अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्स, क्योंकि वो आपका फॉरेस्ट एरिया है.
एंड राजस्थान हैज सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन वहां वाटर नहीं है. द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड, लेकिन वहां कल्चरल हेरिटेज है, वहां पानी की दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है. एंड दे तो दैट मीन्स वी नीड, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान वाटर स्कैर्सिटी इज देयर. अरुणाचल में वाटर बहुत है लेकिन वहां पर लाइट नहीं है, वहां पर मतलब कि दूसरी चीजें नहीं है. दैट मीन्स वी नीड अ बैलेंस. सब कुछ है लेकिन बैलेंस में नहीं है. Therefore we need to, ये आपके 3 स्टेप्स आते हैं. What is resource planning and what are its 3 steps? पेपर में आया हुआ है. तो the very first is you need to identify and take the inventory. का मतलब है कितना स्टॉक कितना है, this you have to identify. जब तक टेक्निकली वो इतना नहीं है कि हम उसको प्रॉपरली यूज कर सके, यू कैन नॉट ट्रांसफर द रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स. तो आपको ये भी देखना है कि हाउ मच रिसोर्स यू हैव. मींस सर्वे करिए, मैपिंग, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब उसे किस टेक्नोलॉजी, किस स्किल से we are going to change it into something usable, and then where we can use it for the national developmental plans. These are the 3 steps in resource planning. Now, as I said, in India we have abundant resource. Even we have been trying from the first 5-year plan. Bacha, now you may ask what is first 5-year plan. इंडिया ने एक डेवलपमेंट के लिए इट हैड अडॉप्टेड अ मॉडल जिसमें हमने मिक्स्ड इकोनॉमी किया था. एंड वी हैड अडॉप्टेड प्लानिंग थ्रू 5 years. मतलब 5 साल हम एक पर्टिकुलर चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे. लाइक द फर्स्ट 5 years was on agriculture, second was on industry, ऐसे करके एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे करके 5 years बजट इज अलोकेटेड. उसके लिए पैसा अलग से निकाला जाता है एंड डेवलपमेंट किया जाता है. तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 year हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग पर वी हैव ऑलवेज फोकस्ड. And we are not only having the resources, we need the technology also. In India, technology has always been a what you call as hinder. हमारे यहाँ पर resources हैं लेकिन ये एरियाज इतने बैकवर्ड है, वहां पर हमारे लिए डिफिकल्ट होता है टू डेवलप इट. एंड when we talk about, ये एक बार आया था दिस, जो ये वाला पैराग्राफ है कि what were the reasons of, जहां पे आपके जो कॉलोनाइजेशन है, what it has been the reason. तो जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश आए थे शुरू में, द ब्रिटिश, द मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी, दे ऑल केम बिकॉज वी हैड इनफ ऑफ रिसोर्स. अगर आपको पता हो, इंडिया इज कॉल्ड एज द गोल्डन बर्ड. उनके पास दे हैड द टेक्नोलॉजी, so they could exploit those resources. Like not only India, if you go to Java, it is very good for rice. And जो डच थे, they colonized that area. तो resources can be used only when we are having appropriate technology and proper institution जो इसका ध्यान रखें. और in India we have been facing this problem because हमारे पास resources है, टेक्नोलॉजी जो है that has been bit challenging. अब रिसोर्सेस तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम रिसोर्सेस को ओवर यूज करते हैं, then what will happen? It would lead to depletion. It would lead to socio-economic problems. Like the rich becomes richer, the poor becomes poorer.
It also gives us the environmental problems. Gandhi ji said, one marker question MCQ, there is enough for everyone's need, but not for anybody's greed. Matlab, he was completely against the mass production and wanted to replace production by the masses. ये मैंने उस क्लास में भी समझाया था. उनका मानना है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो आपके रिच होते हैं, नॉर्मली व्हाट दे डू इज वो अपने फायदे के लिए दे यूज मशीन. ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, मतलब वो मशीन के प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे. ही वांटेड प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब ही वांटेड, जैसे वो चरखा वगैरह को ही यूज्ड टू प्रमोट, ही वांटेड मोर एम्प्लॉयमेंट, नॉट मास प्रोडक्शन. This once it has come कि गांधी जी फिलोसफी को स्क्यूमाशर ने अपनी किस बुक में लिखा था, it had come. So now, as per the resources, we have land and soil. In the last class, I had already taken up land resources. Land जिस पर आप रहते हो, which supports the vegetation, life, human life, economic activity, transport, communication, and the land pattern, ये वाला आपका और एक और आपके आएगा अभी, I'll show you. These two come in the exam even for interpretation. तो लैंड हम यूज करते हैं फॉर माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन, एग्रीकल्चरल लैंड, टूरिज्म, ह्यूमंस, रिवर्स, सब कुछ है. दिस हैज बीन अ क्वेश्चन इन सम ऑफ द स्कूल्स कि लैंड को हम कैसे यूज करते हैं. वी यूज इट फॉर फॉरेस्ट. सम लैंड मे नॉट बी अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. some may be used for non-agricultural uses. On some there might be pastures जिसपे graze करते हैं, जिनमें हमने मतलब कि groves लगा रखे हैं. तो जो बच जाता है, then fallow land होता है the land which is left uncultivated for a period to regain its fertility. ये सब के बाद जो हमारे पास बच जाता है, that is the actual area we use for agricultural purpose. तो net sown area, the physical extent of land on which the crops are sown, harvested, is known as net sown area. This has come in all the schools, even in boards. Area sown more than once in an agricultural year, कोई एक एरिया प्लस जो नेट सोन एरिया है, इन दोनों को मिलाकर हम टोटल निकालते हैं द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जिस पर आपने क्रॉप्स लगाए थे. जैसे हमने पालमपुर में पढ़ा था, वहां मल्टीपल क्रॉपिंग होती है. तो मल्टीपल क्रॉपिंग और जो आपका मेन क्रॉप है, उन दोनों को मिलाकर आप कितना करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर कल्टिवेटिंग पोटैटोज, देन शुगर केन, वीट एंड बाजरा. तो इसके अंदर से जो आपका वीट है वो आपका मेन है, बाकियों को वो लोग जो है इन द सर्कुलेशन दे डू इट. तो इन सब का टोटल करके हम निकालते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. इन द पैटर्न यूज्ड इन इंडिया, हमारे यहाँ पर वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ये आया है पेपर में. एक्चुअली according to forest survey, 33% of the total land should be used for forest. But अगर हम देखते हैं तो there have been time when हमारा जो एरिया था वो 23-24% रह गया था. अभी for the past few years again forest पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. Now it is around 27%. एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा जो ओवरऑल लैंड एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, बट वी यूज ओनली 93% ऑफ द टोटल. तो व्हाई? बिकॉज द अदर एरिया जो 7% एरिया है, they have not been used since they have been in the disputed locality.
like near China or near Pakistan? 1 marker question है. This is what I had told. जो फॉरेस्ट का है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, this is the one. So for the past few years, due to so many factors, कहीं पर आपका जो लैंड है वो वेस्ट है, मतलब वो बंजर हो गया है, वो रॉकी है, वहां नॉन एग्रीकल्चर है, ड्यू टू फैलो लैंड, ड्यू टू ओवर पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन का मतलब होता है जहां आपके चरवाहे चरते हैं वो भी आपका रिड्यूस हो गया. देन इफ यू सी 80% जो है हमारा पंजाब और हरियाणा में है जहां आपके ज्यादा पौधे वो हार्वेस्ट होते हैं. एंड इफ यू लुक इनटू अरुणाचल, मिजोरम वगैरह, यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर कम है. तो ड्यू टू मेनी फैक्टर्स द लैंड हैज डिग्रेडेड फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स. ये आपका उस दिन आपको मैंने बताया था. दिस इज ऑल्सो देयर इन द बैक, आपके पीछे भी है. सम एरियाज जो आपके ह्यूमन एक्टिविटीज भी मतलब कि सॉइल इरोजन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, इन सब की वजह से लैंड आपका डिग्रेड हुआ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी बक्सा टाइगर, ये वाला जो लैंड रिजर्व था, ये दिस वाज ड्यू टू द माइनिंग ओवर देयर. ये वाला अब जो पढ़ रहे हैं, दिस हैज कम इन द एग्जाम, मैच द कॉलम के अंदर भी आया है. इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, deforestation has taken land degradation has taken place due to mining. In Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is the reason. In Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh, over irrigation is responsible. ये आपके true and false, then आपका assertion and reason, match the column, सब में आया हुआ है ये वाला जो पूरा है. Then the mineral process like grinding of limestone for cement industry, calcite, soapstone for ceramic, इनकी वजह से डस्ट आपके आ जाते हैं और इनकी वजह से जो पानी होता है उनमें ये कंकड़ आ जाते हैं, which is मतलब कि water infiltrate नहीं होता है. And then what happens, it settles down on the soil, on the land, and it also reduces the fertility. तो ऐसे हमारे बहुत सारे रीजंस हैं ड्यू टू विच द लैंड एंड सॉइल हैव बीन पोल्यूटेड. एंड वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. ये आगे भी है और यहाँ पर भी है. ये सिर्फ लैंड के लिए है, आगे सॉइल वाला है, एंड सॉइल वाला बहुत बार पेपर में आया है. लैंड को to prevent land degradation, we can go for afforestation, proper management of grazing, planting of shelter belts, overgrazing को control करना, checking the land degradation in the arid use wasteland, mining activity, proper usage of discharge of the industrial effluent. अगर हम ये सब करते हैं तो we can protect the land from further degradation. आज ही न्यूज़पेपर में था, इट वॉज देयर इन द न्यूज़पेपर और इन द न्यूज, वन ऑफ द फॉरेन डेलीगेट्स हैड पुट द फोटोग्राफ, उसने फोटो डाल रखी है, एंड इट वॉज ऑफ मतलब दिल्ली में किसी एक एरिया का था, एंड ही हैज शोन दैट हाउ मच द गार्बेज हैज बीन डम्प्ड ओवर देयर. नाउ गार्बेज डंपिंग, आपको पता है जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, ये जो कंप्यूटर्स वगैरह, समटाइम्स वी डिस्कार्ड इट. एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, व्हेन दे आर डिस्कार्डेड, दे नॉट ओनली डिग्रेड द सॉइल एंड लैंड, दे आल्सो आर वेरी हैजार्डस फॉर आवर हेल्थ. Then we had done what was soil in the last class. So soil, the renewable natural resource जो plant growth and living organisms को support करता है. How can you say that
soil is a living system? This was a question I told you also in the class. This is because it takes millions of years to form soil just 1 centimeter की. एंड जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है दैट डिपेंड्स कि आपका सॉइल कौन से रिलीफ फीचर पे है. पहाड़ पर है, इट इज ऑन द इन द डेजर्ट, इट इज ऑन द कोस्टल एरिया. व्हाट इज इट्स पैरेंट रॉक, नीचे जो मेन रॉक है वो कौन सा है. what kind of climate and vegetation that particular area is experiencing. What is the change in temperature, running water, glaciers, इन सब के ये सारे factors होते हैं which contribute to the formation of soil. Like the living beings, it also has the chemical and organic changes. जैसे हमारे अंदर changes आते हैं. हम जब बच्चे होते हैं हमारी आवाज थोड़ी अलग होती है, हम बड़े होते हैं हमारे अंदर अलग आवाज आती है. So similarly, certain chemical changes also takes place, and that is why we say it is a living organism. So on that basis, yahan se hi I have to start today's class. On that basis, we classify the soils into, that is where it is located, what is the temperature over there, what is the rainfall that it receives, what kind of vegetation it supports. We have the kinds of soil which will be your map question 100% identification. Alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, and forest soil. So let us start. Now from the alluvial part, what you will be getting. आपके पेपर में alluvial soil का एक तो characteristics आ सकता है, एंड दूसरा मतलब कौन सी जगह पर, इन विच प्लेस इट इज प्रोमिनेंटली फाउंड, ये आता है. एंड थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन खदर एंड भंगर. दिस इज वन ऑफ द repeated question from this portion. So alluvial soil is the most fertile soil which supports the entire crop system. This is most widely spread and important soil. The northern plains are made of alluvial soil, and this is due to Himalayan river deposits, that is Indus, Ganga, and the Brahmaputra. The soil also extend to Rajasthan and Gujarat through, मतलब वहां पर थोड़ा narrow है लेकिन वहां पर भी है. It is also found in the eastern coastal, particularly in the delta of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. ये आपके identification में भी है, and it is also there in the MCQ. The alluvial soil consists of various proportions, sand, silt and clay. और ये जो है they are मतलब कि they are rich in all the nutrients which are very essential for the growth of crops. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear what bigger in size. और अगर आप थोड़ा ऊपर in the upper, when you reach near the place break of slope, वहां पर soil थोड़े coarse होते हैं. And such soils are more common in Piedmont. Piedmont का मतलब होता है बच्चा चढ़ाई उतार, जैसे आपके ये माउंटेन है, तो जो ये आपकी ये स्लोप्स हैं इनको बोलते. इन प्लेन्स में मतलब इनके जो प्लेन्स होते हैं उनमें जो सॉइल पाया जाता है दुअर, काउस और तेराई. तेराई रीजन होता है जहां मार्शी होता है, जो आपका जो मिट्टी होता है वो थोड़ा मार्शी होता है. अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, मतलब यहाँ पर किस तरीके का सॉइल होता है, मोटा पतला, दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज. जो आपका बंगर है, इट्स एन ओल्ड सॉइल. कोई लोग बंगार बोलते हैं, बंगर बोलते हैं, एंड खदर. जो बंगर है दैट्स एन ओल्ड सॉइल जो रिवर से, अगर आपका यहाँ पर रिवर है तो रिवर से थोड़ा दूर होता है.
and Khadar is just near the river bed. एंड जैसे जैसे रिवर आपका आता रहता है उसमें जो वो जो मिट्टी होती है वो रिन्यू होती रहती है. Whereas Bangar is somewhat away, उनमें थोड़े कंकड़ ज्यादा होते हैं. It's called as the old alluvial soil. According to the age, alluvial soil can be classified into old alluvial soil and new alluvial soil. The Bangar has high concentration of कंकड़. आपके एग्जाम में भी आया है. Nodules and the Khadar. It has more finer particles and more fertile than Bangar. खदर जो है वो ज्यादा फर्टाइल रहता है. दिस इज बिकॉज जो खदर है वो रिवर बेड्स के पास में होता है जहां आपका जो मतलब कि ड्यू टू द वाटर रिन्यूएशन वहां पे रिन्यू होता रहता है. एंड खदर इज बिट अवे फ्रॉम द मेन रिवर बेड. सो इन सॉइल को यूज करने के लिए वी नीड टू उनको हमें ट्रीट करना पड़ता है. alluvial soils as a whole are very fertile. ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन खदर एंड भंगा. Mostly these soils contain potash, phosphoric, lime, which are ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. अगर आप देखो तो maximum population आपको इन्हीं areas में मिलता है. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. Even though the entire thing is not given, but in the notes it is given and it comes in the exam more, matlab ki in your school also and in boards also. Difference between Khadar and Bangar. The next is आपका black soil. जो आपका ब्लैक सॉइल है उसको हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेगर सॉइल भी बोलते हैं. इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन आता है द अदर नेम फॉर रेगर सॉइल, द अदर नेम फॉर ब्लैक सॉइल. दिस इज ब्लैक बिकॉज इट्स अ मेन आपका जो वॉल्केनो था जहां पर जो आपका मेन गोंडवाना लैंड वहां जो वॉल्केनिक इरप्शंस है उनसे बना. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. It is believed climatic condition along with the parent rock materials are important factors for this formation. This type of soil is typical of Deccan Tract and spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. ये सब कुछ 1-1 mark. They cover Maharashtra, Saurashtra, Malwa. Malwa is आपका इंदौर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ and extend to southeast direction along Godavari and Krishna. The black soils ये आपके पेपर में आता है. What kind of, I think this question is there in the NCERT also, कि महाराष्ट्र में कौन सा सॉइल पाया जाता है और उसके मेन फीचर्स लिखना है. And that is आपका black soil. So you need to mention this, everything you have to mention. The black soils are made up of extremely fine clayey material. They are well known for capacity to hold moisture. And they are rich in calcium carbonate, magnesium, potassium, lime. These soils are generally poor in phosphoric contents and जब गर्मी होती है, as seen this, they develop cracks which helps in proper aeration, मतलब हवा निकलती है. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during pre. अगर बारिश से पहले इन मिट्टी को तैयार ना किया जाए तो फिर इन पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये चिपक जाते हैं. इट्स बेसिकली महाराष्ट्र वगैरह में आपको ये वाला सॉइल मिलता है. And I think this is there in the, it was there in fact. Now the question is changed into this way. पहले था कि महाराष्ट्र में कौन सा सॉइल आता है. Now this question is changed into delta region of east coast. पहले यहाँ पे महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन था and उसका फीचर बताना.
तो अगर कोई भी सॉइल आए, यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई इट विद द स्टेट्स। लाइक ईस्टर्न कोस्ट के अंदर आपका अलूवियल सॉइल ज्यादा है, वहां पर आपका अलूवियल है, तो उसके फीचर्स बताने। द नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलीन इग्नियस, ये बेसिकली उन जगहों पर है जहां आपके मिनरल्स वाला जो एरिया है प्लेटू रीजन, वहां पर छोटा नागपुर, देन छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, वो वाला एरिया जो है, यू कैन फाइंड इट। द इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain, and along Piedmont area of Western Ghats. These soils develop a reddish color, इनमें लाल कलर होता है, due to the presence of iron in crystalline and metamorphic, and it looks yellow when it is in the hydrated form. जब जब इसमें पानी होता है तो येलोइश कलर सा दिखता है। नेक्स्ट इज लेटराइट। आपका लेटराइट सॉइल इज लीचिंग, इट्स फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, जहां ज्यादा गर्मी एंड तेज बारिश होती है, तो इसका जो आपका मतलब कि ह्यूमस कंटेंट है उसमें प्रॉब्लम आती है। और लेटरेट सॉइल इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बट आपकी जो स्पाइसेस है, केशो नट्स है, काजू, ये सब यहाँ पे केरला वाला एरिया है। लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटर, मतलब ब्रिक। द Laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is the result of intense leaching. अगर if you have looked into the notes which I have already shared, उसमें मैंने leaching का definition दिया हुआ है, which is important. They are mostly deep to very deep, acidic, deficient in plant nutrients and occur in southern states. आपका महाराष्ट्र का जो नीचे का पोर्शन है, वहां गोवा वगैरह में आपको ज्यादा मिलता है, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। दे सपोर्ट deciduous evergreen forest. It is humus rich but under sparse vegetation and in semi arid environment it is generally humus poor. और इस वजह से ये इरोड, यानी कि इनका जो ऊपर की जो लेयर है वो जल्दी हट जाता है, एंड दे डिग्रेड। So we can, if after proper soil conservation in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil has been used for producing tea and coffee. The red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are suitable for crops like cashew nuts. If you have seen cashew nuts, that's a very typical flowering plant. केशो नट में क्या होता है कि जो उसका सीड होता है वो बाहर हो, वी इवन हैव, हम उसको जो है तमिल में वी नॉर्मली हैव दिस, एक जैसे किसी कोई बहुत जल्दीबाजी करता ना, तो हम बोलते हैं दैट यू आर जस्ट लाइक द सीड ऑफ केशो नट। नेक्स्ट इज एरिड। एरिड का मतलब होता है आपका डेजर्ट सॉइल। Arid is also said to be the desert soil. Arid soil range from red to brown. और ये ना पेपर में this one comes and most of the time what happens is children write it as red and yellow, क्योंकि ये दूर से देखने में red and yellow लगता है, but this is arid soil according to the book you have to write. ये पेपर में आया हुआ है, this picture has come, एक black वाला आया है और एक ये वाला आया है, तो प्लीज मेंशन इट, मतलब डोंट लुक इट कि रेड एंड येलो लग रहा है दूर से। दे आर जनरली सैंडी एंड सलीन, नमकीन, बिकॉज यहाँ पर आपका सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। इफ यू सी इन राजस्थान यू हैव द सॉल्ट लेक, सांबर लेक। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवोपरेट हो जाता है, सॉइल डजंट हैव द ह्यूमस जो आपके क्रॉप्स को पकड़ के रखता है। The lower horizon of the soil are occupied by conker,
The conquered layer formations in the bottom horizon restrict the infiltration of water. जैसे हमने ऊपर देखा था कि लैंड क्यों डिग्रेड होता है, तो ये एक रीजन है, द प्रेजेंस ऑफ कंकड़. कंकड़ अगर आपका होगा तो क्या होगा, आप जो पानी जो वो नीचे की तरफ जा नहीं पाएगा. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. मतलब इन एरियाज में है बट नॉट इन ऑल द एरिया. एंड द मेन रीजन इज इन एरियाज में बारिश कम होती है एंड द टेम्परेचर इज टू हाई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फॉरेस्ट सॉइल. इसको हम मॉन्टेन सॉइल भी बोलते हैं. आई एम यूजिंग ऑल दीज टर्म्स because in the exam sometimes instead of arid it comes desert. These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainwater forests are there. हमारा जो असम से ऊपर अरुणाचल वाला रीजन है वो. The soil texture varies according to mountain environment. They are loamy, मतलब जिसमें सिल्ट ज्यादा होता है, एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप. अगर हम ऐसा बनाते हैं तो जो ऊपर का स्लोप होता है वहां पर थोड़ा सा कोर्स होता है, खुरदरा. इन द स्नो कवर्ड, जो आपका हिमाचल वाला एरिया जहां आपका स्नो ज्यादा है, दे एक्सपीरियंस डीन्यूडेशन. मतलब ये हट जाते हैं, इनका ऊपर का लेयर हट जाता है. एंड एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट. The soils found in the lower part of the valley, जहां नीचे उतरते उतरते, they are more like alluvial fans and they are fertile. मतलब when you talk about the soil, उनके फॉर्मेशन में जब ये ऊपर से नीचे उतर के आते हैं तो इनके टेक्सचर और इनके नेचर में there are some differences. Last but not the least, one of the most important is soil erosion and soil conservation. This is there in your exam also. इसमें से आता है. Now, land के लिए तो हमने पढ़ा. The denudation of soil cover and subsequent washing down is called as soil erosion. The process of soil formation erosion goes simultaneously. मतलब वो बढ़ते भी है but they also erode, and normally there is a balance. But due to deforestation, overgrazing, construction, mining, then natural force like wind, glacier and water, soil आपका erode होता है. When you are cutting the trees, फॉरेस्ट जो है नॉर्मली वो आपके सॉइल को पकड़ के रखते हैं, बट व्हेन यू डिफॉरेस्ट देम तो सॉइल का जो ऊपर लेयर होता है वो आपका डिन्यूड हो जाता है. द रनिंग वाटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थ्रू द क्लेई सॉइल मेक डीप चैनल्स. ये आप राइट साइड में देख सकते हो, बीच में आपके जो मिट्टी है उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं जिनको हम इंग्लिश में गली बोलते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज गली इरोजन. आपके पेपर में सॉइल इरोजन के अलग अलग फॉर्म्स हैं. शीट इरोजन, विंड इरोजन एंड गली इरोजन. गली इरोजन इज ड्यू टू वाटर. वाटर के आपको जो वाटर चैनल काटता है तो वो जो एरिया है जो मतलब की मिट्टी है उनमें आपके गड्ढे पड़ जाते हैं. विंड इरोजन इज ड्यू टू द मतलब की फैक्टर्स ऑफ विंड. एंड सच लैंड बिकम्स अनकल्टिवेबल, जिनको हम लोग बैड लैंड भी बोलते हैं, यानी कि दैट लैंड कैन नॉट बी यूज फॉर कल्टीवेशन. और ऐसे आपको चंबल घाटी यानी कि आपका राजस्थान वाला जो एरिया है वहां यू कैन फाइंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवाइन्स. जो रेवाइन्स है दे आर दी अदर नेम फॉर बैड लैंड एंड दे आर कॉज ड्यू टू गली इरोजन. Sometimes the water flows as a sheet over the slope. जैसे आपके माउंटेनियस रीजन है वहां पर. तो देन व्हाट हैपेंस, जो टॉप लेयर है यानी कि इफ यू सी दिस, तो यहां से पूरा का पूरा ये जो शीट है दिस इज रिमूव्ड.
and that's called as sheet erosion. Wind and that is called as sheet erosion. Sheet मतलब जैसे sheet होती है आपके, similarly entire due to the water, आपका जो water flow की वजह से the entire sheet may be removed, but that is there on the slopy areas. Wind blows loose soil off flat or sloping, उसको हम बोलते हैं wind erosion. एक गली erosion, दूसरा wind erosion, and तीसरा water यानी कि आपका sheet erosion. एंड इससे क्या होता है, इवन अगर हम गलत मेथड्स यूज करते हैं, दैट आल्सो रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन, दैट इज फ्लोइंग अप इन अ रॉन्ग वे, ऊपर नीचे करके, तो उससे भी आपके चैनल्स बन जाते हैं. नाउ द लास्ट जो पोर्शन लिखा है, दिस इज हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो हाउ कैन वी कंजर्व इट? we can conserve it with different ways. हम इसको जो है अलग अलग तरीकों से कंजर्व कर सकते हैं. We can protect it. For example, flowing along the contour lines. Now, what is this contour lines? अगर आप लोग कभी उसमें गूगल वगैरह करोगे तो you will see this, ऐसे आपके जो है ऐसे बने होते. तो अगर हम इन कंटोर लाइंस के आगे ऐसा मतलब कि वी आर फ्लोइंग, देन आपका जो ये सॉइल है इट कैन बी हेल्ड, इसको हम पकड़ के रख सकते हैं. द स्टेप देन आपके जो माउंटेनियस रीजन है, अगर आप लोग पहाड़ पे गए हैं तो आप वहां पर देखेंगे दे कट दिस, वो लोग क्या करते हैं पहाड़ को काटते हैं एंड दे मेक इट लाइक अ स्टेप, जैसे सीढ़ियां बनी हो, तो उससे भी आपका सॉइल होल्ड हो जाता है. एंड इट इज स्पेसिफिकली इन द एरियाज जहां आपके जो पहाड़ी माउंटेनियस एरिया है वहां पर. द टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. ये आपके पेपर में लिखा भी हुआ है कि ये कौन से एरियाज में ज्यादा काम आता है. द वे वेयर द माउंटेन इज देयर. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग. हाउ इट इज डन, आपका जो स्ट्रिप फार्मिंग होता है वो होता है यू कैन जस्ट डिवाइड, ये जैसे आपका ये लैंड है इसमें बीच में आपके स्ट्रिप्स बना दिए जाते हैं यूजिंग द ग्रास. इनमें ग्रास ग्रो किया जाता है एंड देन उसे ग्रास ग्रो करेंगे तो क्या होगा, वो एरिया आपका जो है होल्ड हो जाता है. So that is called as strip farming. Then if you are having the land, ये यूपी के कई जगह पर you can easily find, इनके चारों तरफ क्या होता है आपके पेड़ लगा दिए जाते हैं टू इस मतलब की फील्ड को होल्ड करने के लिए. इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेड्स. Rows of such trees are called shelter beds. These shelter beds have contributed, जैसे उसमें स्ट्रिप फार्मिंग में ग्रास लगाते हैं, इनमें हम ट्रीज लगाते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो सॉइल होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है. स्पेसिफिकली इन द डेजर्ट एरिया जहां पे आपकी मिट्टी ज्यादा उड़ती है, वहां पर आपको पता है डेजर्ट में सैंडी होता है तो उड़ता है, तो वहां पर अगर हम शेल्टर बेड लगाते हैं तो दैट होल्ड्स. तो व्हाट आर द वेज टू कंजर्व द सॉइल? कंटोर फ्लोइंग. कंटोर फ्लोइंग होता है आपके लार्ज एरियाज ऐसे आपके बने हुए हैं, इनके कंटोर लाइंस पर फ्लो करने को हम कंटोर फ्लोइंग बोलते हैं.
देन आपका टेरेस फार्मिंग, जो आपके हिली रीजन्स होते हैं वहां पे आपके टेरेस फार्मिंग होता है, जहां आपका जो है कट करते हैं, द सीढ़ियों की तरह काटा जाता है। देन आपका स्ट्रिप फार्मिंग, जहां पर आपके छोटे छोटे से जो एरियाज, मतलब जो आपके फार्म एरियाज हैं उनको काट के इनमें ग्रास लगाया जाता है। एंड शेल्टर बेल्ट होते हैं जहां पर चारों तरफ द ट्रीज आर प्लांटेड. So these are different ways through which we can conserve the soil. This is one of the most important questions. What is soil erosion? Reasons of soil erosion. आपका human activity is there. Then आपका wind erosion is there. Water से आपका sheet erosion is there. Gully erosion is there. And what are the different ways? तो ये आपके different ways है to protect the soil. So that is the chapter resources and development. In this, one thing more which I just skipped off, आपके एग्जाम के अंदर you would also be getting this identification. मार्क करने के लिए नहीं आता है, it is for identification. Means you have to identify the kinds of soil which is there. लाइक इफ यू सी दिस, ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया, देन आपका ये जो अरुणाचल वाला यहाँ पर जो एरिया, दे आर ऑल माउंटेनियस सॉइल. दिस वन, ये जो लाइट ग्रीन है, एंड देन ये जो डेल्टा रीजन है आपका, दिस इज आपका अलूवियल. देन दिस एंटायर दिस प्लाटू, यहाँ गुजरात के पास, दिस इज ब्लैक सॉइल. ये वाला जो राजस्थान वाला एरिया है, दिस इज एरिड. यहाँ पर ये आपको छोटा सा जो दिख रहा है, दिस इज लेटराइट. एंड ये जो रेड एंड येलो, दिस इज द वन. So these are some of the, these are the 6 kinds of soil, and this would be coming for identification in your exam in the maps. From each chapter, we have some maps, and from this you will be having to identify the soil type. And the identification can be a map. The identification can be a one marker question also, कि this is, ये यहाँ पाया जाता है, this is its feature, to identify that soil. It can be in both the ways. So that is the chapter resources and development.